discriminant is d1, right? So root d by a, and this is minus b by a. Similarly, under root of d2 by a minus b by a, right? Cancelling both the numbers, squaring both sides. So we are getting b square minus 4ac by b square is equal to b square minus 4ac by b square. Cancel out the number 1 minus 4ac by b square, 1 minus 4ac by b square, 1 and minus will be cancelling. So at last what I'm getting, ac by b square is equal to ac by b square. Look back into the question. The question a was 1 for the first equation, b was p, and c was q. Similarly, for the second one, this a1, b is p1, c is q1, right? So applying the formula a, b, and thus what I'm getting, ac is q by p square is equal to q1 by p1 square. The ultimate result, what you are finding, you can look into this, the basic question. See, the ratios were given as alpha by beta is equal to gamma by delta, but we know that we can convert this alpha by beta gamma by delta. We don't have any formula for alpha by beta and gamma by delta, but we have formula for alpha plus beta and alpha minus beta. We know three values, alpha plus beta, alpha minus beta, and alpha into beta. So I'm converting this alpha upon beta and gamma upon delta into alpha plus beta and alpha minus beta by very simple formula, right? That's componendo and dividendo, or dividendo or componendo. Note down, please. I guess clear to all. Yes, sir. Go for the second question. If alpha by beta is equal to p by q and alpha and beta are the roots of lx square plus nx plus n is equal to 0, find value of under root of p by q plus under root of q by p plus under root of n by l. Write down the answer, please. Done, everyone. Yes, sir. Send the answer, please.
alpha upon beta is equal to P by Q, right? Alpha by beta upon P by Q. So using componendo and dividendo, again, either you can apply, then you'll get alpha plus beta and alpha minus beta. But in this case, if you'll see, right, if we are writing P by Q as alpha by beta, so what I'm getting, this will be under root of alpha by beta plus under root of beta by alpha plus under root of n by L, right? If I'm going for the basic definition of this, right? If I'm going for a basic definition of this, so I'll solve these two. The flat तरीके से अगर मैं solve कर रहा हूँ, so I'll get alpha plus beta upon under root of alpha beta plus under root of n by L. Now, we know that alpha plus beta, from this equation, I can say the value of alpha plus beta is minus n by L, and alpha into beta is again n by L. So alpha plus beta and alpha into beta both are same, but alpha plus beta with minus sign. So this is minus n by L upon under root of n by L plus under root of n by L. Cancelling both this, under root of n by L plus under root of n by L is equal to 0, right? ये एक तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, राइट? नोट डाउन, फिर मैं बताऊं इस सॉल्यूशन में क्या स्पेशल है और क्यों ये सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग हो जाता है. ओके एवरीवन, डन. Yes, sir. इसके सॉल्यूशन में एक बार फिर हमें आना पड़ेगा. दिस सॉल्यूशन इज नॉट कंप्लीटली राइट, राइट? इसमें थोड़ा गड़बड़ है, राइट? बट अभी के लिए मैं इतना ही दे रहा हूँ और आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ कि इसके सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ है. नेक्स्ट क्लास तक आप सोचें. उसके पहले भी अगर आपको कुछ भी आ जाता है तो यू कैन मैसेज मी, राइट? बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट, राइट? राइट? सर यस प्लीज. सर ये जो हमने दो क्वेश्चन किया इसमें वो डायरेक्टली वो रिलेशंस यूज कर सकते हैं जो आपने दिए थे, हाँ बेटा, रेशियो के रिलेशंस. कर सकता हूँ रेशियो के रिलेशन, बट यहाँ तो रेशियो को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट दिस ना, बट यू कैन, राइट? नो, सर उससे मेरे को सेकंड का 2 अल्फा बीटा आ रहा है. 2 अल्फा बीटा आ रहा है. तो अब मैंने उसको क्वेश्चन को आगे बढ़ा के आप लोगों को दे दिया है एक बार ना. हाँ सर. यू हैव टू थिंक कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है. जो सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन था, दिस इज नॉट करेक्ट. इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन L minus m x square plus Lx plus 1 is equal to 0 is double the other right, then find greatest value of m. Find greatest value of m.
इसके लिए भी फॉर्मूला हम लोगों ने किया था. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला और जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन विद द बेसिक्स. उत्सव, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फर्स्ट क्वेश्चन बेटा? ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था, राइट? इसके सॉल्यूशन हमने ये रखा, दोनों के रेशियोज गिवन थे, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया, राइट? एंड उसके बाद लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला हमने लगाया था वो फॉर्मूला लगाया, स्मॉल ए बी सी के रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर दी. ओके, यू कैन टेक द पिक्चर ऑल्सो, राइट? फर्स्ट सेकंड दो क्वेश्चन जो हम मारे थे वहां पर, एंड जस्ट गोइंग फॉर द थर्ड वन. क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट आ जाएगा, L बिलोंग्स टू रियल. देखो ध्यान से, थोड़ा सा एक अलग आपके लिए इनिशियल केस में अलग है, बट इस क्वेश्चन का की पॉइंट जो है वो है ये, L बिलोंग्स टू रियल देना एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ M को पूछा जाना, राइट? की पॉइंट जैसे मैंने कहा कि L बिलोंग्स टू रियल नंबर है, राइट? क्यों, क्या? यहाँ पर ये बिना दिए ही आपको पता होता है कि यहाँ पर X बिलोंग्स टू रियल नंबर है, राइट? बिकॉज हम लोगों ने पहले से ये नोटेशन लेके चला हुआ है, राइट? बट यहाँ के लिए इफ आई एम सेइंग कि वन रूट इज अल्फा, अदर रूट इज 2 अल्फा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस b by a, product of the root c by a, right? Squaring this number, 9 alpha square is equal to L square upon L minus m the whole square. So alpha square की वैल्यू हमने रख दिया 9 by 2 L minus m is equal to L square upon L minus m the whole square. Cancelling out, L is not equal to m. 9 L minus m is equal to 2L square. आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज भी करते तो यहाँ से आप पहुँच सकते थे इस स्टेप पर, राइट? ये स्टेप पहुँचने के बाद आई एम राइटिंग दिस एज 2L स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9m इज इक्वल टू 0. यहाँ पर अब रोल प्ले होता है किसका? L का. कैसे? ये गिवन है मेरे क्वेश्चन में कि L बिलोंग्स टू रियल नंबर R, राइट? अगर L बिलोंग्स टू R है देन वी नो दैट ये क्वाड्रेटिक फॉर L के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रियल वैल्यूज, सेटिस्फाइंग द रियल वैल्यूज. अगर ये स्टेटमेंट गिवन हो तो हमेशा ख्याल रखना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये बात हो रही है. L बिलोंग्स टू R, कोई भी वैल्यूज ले सकता है अगर L, तो ये तभी के लिए पॉसिबल होगा जब इस पूरे इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो. d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और m लेस देन इक्वल टू 9/8. m लेस देन इक्वल टू मतलब मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 9/8. नोट डाउन प्लीज. एंड ये की पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा के रखें कि एग्जैक्टली दिस वाज द की पॉइंट जिसको आपने अपने क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए यूज किया है.
Done. Yes. Very, Yes, sir. very good. If A, B, C are in GP, then find ratio of the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0. If alpha and beta are the roots, you have to find value of alpha upon beta. Asmi, unmute yourself please. Yes, sir. आपने क्या लिखा बेटा ये? सर एक्चुअली आई डोंट नो मुझसे क्या एरर हो गई, पर प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कोई कि दिक्कत नहीं, आपने, मैं बता रहा हूँ, आपने L माइनस M को कैंसिल नहीं किया, इसलिए वो क्यूबिक आ गया ना। हाँ सर, पर मेरा ना डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। क्या चीज का डिस्क्रिमिनेंट? सर वो जो क्यूबिक इक्वेशन थी ना, तो मैंने एल क्यूब को इग्नोर किया और आप एम के टर्म्स में क्यूबिक बनाया। एक मिनट, आपने क्यूबिक का डिस्क्रिमिनेंट कहाँ पढ़ा? सर नहीं, क्यूबिक का डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखा था, वो एल और एम दो टर्म्स थे ना, तो मैंने एम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक लिखा और फिर एम के टर्म्स में तो निकल रहा था ना सर, एल क्यूबिक आ रहा था, एम का वैल्यू आराम क्यूबिक में। आराम से डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग, आराम से। आपने हाँ एम के लिए क्वाड्रेटिक बनाया? हाँ सर। एम के लिए कहाँ, कहीं भी यहाँ दिया हुआ था आपको कि एम बिलोंग्स टू आर है, कि आप उसके डिस्क्रिमिनेंट पर कोई कमेंट कर पाए? नहीं सर। ओके। आप कब कर पा रहे हैं कोई भी कमेंट डिस्क्रिमिनेंट पर? जब x बिलोंग्स टू r है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसमें x बिलोंग्स टू r होता है, देन ओनली यू कैन राइट d ग्रेटर देन 0 पर रियल रूट्स है, d लेस देन 0 पर नॉन रियल रूट्स है इक्वल टू 0। ये सब के सब स्टेटमेंट इसलिए ट्रू हो पा रहे हैं बिकॉज x बिलोंग्स टू r है।
राइट। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं रहेगा, वी कांट गो फॉर द डिस्क्रिमिनेंट। ओके सर, क्लियर है, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट, इसे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो गिवन है वो क्या है, उस पर थोड़ा सा फिर से हम लोग बात करते हैं कि की पॉइंट क्या है, क्या सोचें, कैसे हम लोग क्वेश्चन पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। राइट, सी पहला तो एक ये दिया हुआ है ABCRNGP, राइट। तो ABCRNGP दिया हुआ है, एंड अच्छी बात क्या है, मेरे से रेशियो ही पूछा हुआ है, तो ये मेरे को बहुत बड़ा हेल्प करने को आ गया। कैसे? बिकॉज वी नो दैट B/A इज इक्वल टू C/B, यही होता है कॉमन रेशियो R, अगर मैं बोलूँ तो, राइट, यही आना चाहिए। तो C/A की बात मैं करूं, वो होना चाहिए R²। एक बेसिक सा बात यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ABCGP में है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर A को मैं A रहने दूं तो B मेरा जो होगा वो AR होना चाहिए, और C मेरा होना चाहिए AR² होना चाहिए। यहाँ से मैं अगर कंपेयर करके देख रहा हूँ तो C/A की वैल्यू 1 आ रही है और B/A की वैल्यू आ रही है, राइट ना। सो अब ये रिलेशन जो मेरे पास गिवन है, इस रिलेशन को मैं यूज करके, राइट, कहीं ना कहीं एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ रिलेशन आर में, और जिसमें आर की मेरे को वैल्यू निकालनी है। राइट, क्वेश्चन बस इतना सा है। मेरे पास जो बेसिक रिलेशन है उस पर बात मैं करूँ तो मेरे पास कुछ ही बेसिक रिलेशन है जो बड़े प्यारे वाले हैं। कौन कौन से? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -B/A है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू C/A है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू -B/A है, जो कि -R हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू C/A है, जो कि R² हो गई, राइट, R एंड R², राइट। तो मैं फर्स्ट वाले को स्क्वायर कर देता हूँ, राइट, और दोनों को इक्वेट कर देता हूँ या डिवाइड कर देता हूँ, जैसा भी आप बोलो, राइट। स्क्वायर किया तो माइनस विल बी प्लस, सो दिस अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये आना चाहिए। एक्सपेंड करता हूँ, लाइक वी नो दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाई बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, सो अल्फा बाई बीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर की वैल्यूज के लिए यू कैन गो। नोट डाउन प्लीज एवरीवन। ओके, सो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये इमेजिनरी आती है और ये बड़े अच्छी सी वैल्यू है जो आगे जाके आपको पता चलेगा। अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू -B प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस, राइट, इसे हम लोग लिखते हैं -1 प्लस -I√3/2, जिसे यूजुअली डिनोट किया जाता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से आगे चलकर, और इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन को आपको एक तो समझना है, एंड उसको अप्लाई कैसे होना है वो भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेरी गुड।
डन एवरीवन, राइट। ये लास्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था उस पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग को करवाए। नाउ गोइंग अहेड ऑफ दैट, वहां से थोड़ा आगे मैं बढ़ रहा हूँ। सी, नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर डूइंग इज formation of quadratic equation। ये फॉर्मेशन कैसे होता है? यस, W जो दिख रहा है आपको वो ओमेगा था। यहाँ पर जो हमने W है उसे ओमेगा रीड करते हैं ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। What this, it's a new concept I'm taking, right? So everyone careful. Formation of quadratic equation. See, if the roots are given, quadratic की बात हो रही है तो roots, मेरे पास दो ही roots होंगे, अल्फा एंड बीटा, दो roots है, right? So the equation will be क्या इक्वेशन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता है। मीन्स if I am writing x square minus alpha into alpha plus beta into x plus alpha into beta, अगर अल्फा बीटा रूट्स है, मान लो अल्फा बीटा की जगह कोई और दे दे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंगली, राइट। सो इफ यू हैव इक्वेशन, और अगर मैं इसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा को माइनस बी बाई ए यूजुअल जो नोटेशन होता है वो रख दूँ, यू कैन सी दिस कि दिस इज कमिंग एज ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay. So, अब इस पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए। पहले बेसिक एक बार दिखाऊं आपको कि लाइक इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then find equation whose roots are first question 2 alpha and 2 beta, right? So अगर आप यहाँ पर की पॉइंट की बात करें तो मैं ये बोलूँ तो पहला तो मेरे को यही गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस मतलब मेरे को तीन जो रिलेशन होते हैं वो तीनों रिलेशन मेरे पास इन्होंने एस्टैब्लिश करवा दिया। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इज रूट बी बाई ए गिवन है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाई ए गिवन है। ये तीन मेरे पास गिवन है। ये तीन को हेल्प लेने हैं, इन तीन के हेल्प से मेरे को आगे प्रोसीड करने हैं, राइट। नाउ
अब मेरे को जो इक्वेशन फॉर्म करने हैं या इक्वेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है, एंड दैट्स विद द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 2 अल्फा 2 बीटा के रूट्स के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस बी बाई ए, टू बी बाई ए प्लस साइन प्लस 4c by a is equal to 0. Now we are getting ax square plus 2bx plus 4c is equal to 0. This is the quadratic equation what we required, whose roots are 2 alpha and 2 beta. Hope everyone is comfortable with this. Yes, sir. Okay, so few questions I'm giving on this part. Everyone careful. So second question on this, find equation whose roots are alpha square and beta square. Third question, alpha by beta and beta by alpha. Fourth question, minus alpha and minus beta. ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए. Do it fast.
Very good. Perfectly. Very good. Very good. Go for the fourth one. Very good. Everyone, write it down. Write down your answer. Very good, Manas, Asmi, Snikta, very good. Aman, Haripriya, Jasovardhan. Yes, Utsav. Yeah, great. So directly you are getting the solution for the solution for second, third, and fourth. This alpha square plus beta square, we have only three values. With the help of these three values, right, we have to find two things. First is the sum of the roots, means alpha square plus beta square, and second is the product of the root alpha square beta square is alpha into beta whole square. Alpha square plus beta square is nothing but alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Alpha plus beta is minus b by a the whole square minus c by a and c by a the whole square. So this is b square minus 2ac by a square is sum, and this product is c square by a square, right? Applying x square minus sum of the roots into x plus product of the root is equal to 0. So a square x square minus b square minus 2ac. This x square is cancel out with x plus c square is equal to 0. So this is the equation what you are getting. Right? How many of you got the same answer? Write down. Yes. Oh, great. Everyone is getting the same answer. Okay. Good, 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 good. Very good. किसी को नहीं आए हों, गड़बड़ हो, you want to ask anyone? Everyone is getting, right? The same for alpha by beta and beta by alpha, right? Alpha by beta and beta by alpha, what we have to apply, product will be one only, right? And sum is again coming as alpha square plus beta square by alpha beta. This we can write alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta upon alpha beta. Alpha plus beta the whole square by alpha beta minus 2, right? Alpha plus beta is minus b by a upon c by a minus plus b square by ac minus 2. So x square minus b square by ac minus 2 into x plus 1 is equal to 0, or you can transfer this ac both sides. Okay, and obviously the third one,
nothing special, minus alpha, minus beta, and minus minus plus is alpha beta. So this is minus b by a. So this will be b by a sum, and product is c by a. X square minus b by a into x plus c by a is equal to 0. The only change is ax square minus bx plus c is equal to 0. Oh, how many of you are getting all three correct? Write down in the chat. Great, great. Wow. Okay. So, but it could be, the question could be in different form, right? Like ax square plus bx plus c is equal to 0. Roots are alpha and beta. Find equation whose roots are 1 upon a alpha plus b and 1 upon a beta plus b. Take your time. Drew, are you getting this? Drew, are you getting this? Write down in chat. Okay, okay. Hardik, Hardik, is it clear? You are getting this? Not this one बेटा, previous one. ये तो अभी करेंगे हम लोग. Hardik, getting this? Amog, Vaishnavi, Shubham, very good. Rakshit, very good. Jewel, Pritain, very good.
alpha and beta are the roots. So I can write alpha is satisfying this, right? So I can again rewrite or into alpha or plus b. Similarly, beta by minus c is equal to 1 by a beta plus b. Right. So actually, the question given is nothing but this is minus alpha by c minus beta by c. Right. We can convert this in the form of this. Right. Now sum is minus of alpha by b minus of beta by c minus of alpha plus beta by c, right? And alpha plus beta is minus b by a, b by ac. Product is minus minus plus alpha beta by c square, c by a, 1 by ac, right? So equation x square minus sum of the roots plus product of the root is equal to 0. You're getting x square minus ac x square minus bx plus 1 is equal to 0. This conversion is very important in this case, right? You can convert the equation in simplest form. Very good, Anushka. Okay, आई गेस मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ पाऊंगा इस पे. फर्स्ट, find equation whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2 if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c. Yes, Vinit, you can see this also. Solution if you want this. Now, alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. To find quadratic equation whose roots are alpha plus beta, beta alpha plus 2, beta plus 2, 1 by alpha, 1 by beta, and third question is given. Right? Do it fast.
Very good, Asmi. Very good, Yasuvardhan. Amog, very good. Snigdha, very good. Done, everyone. May I start? Haripriya, very good. See, you given alpha plus 2, beta plus 2. I guess everyone is getting this. No need to repeat the things again. But look, without finding the sum and product, we can find we can find the equation. Yes, everyone, careful, right? Actually, we have to go for what is the meaning of if I'm saying the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots alpha and beta. What is the meaning of this? Alpha and beta are the roots of this quadratic equation, means alpha and beta must satisfy this. Means a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, or a beta square plus b beta plus c is equal to 0, right? Or in another word, I can say if two equations are given, one is saying a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, and second is saying a beta square plus b beta plus c is equal to 0, then 100% we can say this, what, ax square plus bx plus c is equal to 0 whose roots are alpha and beta. मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ. Same way I can go from, right, the same way I can go from this, from here, right? जो हमने यहाँ पर if I'm saying कि alpha and beta are the roots of this equation, then yeah, I can write a alpha square b alpha plus c. But two relations are given, then we can say the equation would be something like alpha square, and एक छोटा सा working करके दिखाता हूँ, so you'll get to know कि exactly what I'm saying. Everyone careful ना, बहुत अच्छा concept एक build करने जा रहा हूँ, careful. 5 alpha square plus 3 alpha plus 1 is equal to 0. 5 beta square plus 3 beta plus 1 is equal to 0. मैंने दो इक्वेशन दे दी. Find value of alpha into beta. ये क्या होगा? Write down in the chat. Take your time. Solve this.
दो रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए हैं एंड नाउ आई वांट कि यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। इट्स नॉट गिवन मानस, कोई रूट्स नहीं दिया है, केवल ये गिवन है, दैट्स इट। गिवन है, दो रिलेशन आपको दे दिया है एंड उसके बाद बोलता है अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। यस सर, इस पे आ जाओ। सी, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोगों के वर्किंग तो एग्जैक्टली व्हाट दिस रिक्वायर्ड इज कमिंग, राइट। सी, दो रिलेशन मैंने दे दिया एंड इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, जो की पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, की पॉइंट है कि दोनों की डिग्री जो है वो 2 है। डिग्री 2 है मतलब दो रूट्स होंगे, दो इक्वेशन होंगे, दो सॉल्यूशन हो रहे होंगे, राइट। डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो अल्फा के लिए दो वैल्यूज होगी, बीटा के लिए दो वैल्यूज होंगे। या मैं ये बोलूँ, मैंने एक इक्वेशन फॉर्म किया 5x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, एंड whose roots are अल्फा एंड बीटा। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है। मैं अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहा है ये सेकंड इक्वेशन है। ये दोनों से मैंने अपने तरफ से एक ये एस्टेब्लिश कर लिया रिलेशन, एंड आई नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/5 होती है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, राइट, c/a मीन्स 1/5 होती है, राइट। डिग्री 2 है, मैक्सिमम दो ही रूट्स हो सकते थे एंड दो रूट्स हैं, मतलब ये अल्फा बीटा सेटिस्फाई करता हुआ इक्वेशन से मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ, एंड ये डिड्यूस करते ही व्हाट वी रिक्वायर्ड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टास्क मेरे लिए कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है, 1/5 होगा। इज इट ओके टू एवरीवन? अब ये कंसेप्ट को मैं यूज करने जा रहा हूं, कैसे ये देखें, राइट। ध्यान से बिल्ड हो रहा है इसलिए ध्यान से स्टेप वाइज। सी, ax² plus bx plus c is equal to 0 whose roots are alpha and beta। अल्फा बीटा रूट्स हैं तो ऑब्वियसली आई नो a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 है एंड a beta square plus b beta plus c is equal to 0, ये दो है, राइट। अब मेरे को क्या बोलता है, फर्स्ट कोई भी एक इक्वेशन मैं लेता हूँ, फाइंड इक्वेशन whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2, right? So let's suppose I'm saying this, let this value is capital A and this value is capital B. So alpha is equals to A minus 2 and beta is equals to B minus 2. But since alpha and beta are the roots of this equation, so alpha and beta are satisfying, so I can rewrite in terms of A and B. A minus 2 the whole square plus B of A minus 2 plus C is equal to 0. Similarly, A B minus 2 the whole square B minus 2 plus C is equal to 0. ये दो इक्वेशन आ गए। इज इट ओके? सो अब मैं अगर यहाँ से एक स्टेटमेंट अपना ये दूं, इफ आई एम सेइंग इफ फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, if I'm saying A x minus 2 the whole square B x minus 2 plus C is equal to 0, whose roots are capital A and capital B, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? यहाँ से यहाँ तक नोट करें, थोड़ा इसे सोचें।
Yes, Itans. Sir, I have a doubt, sir. Why we have taken alpha plus 2 as a, because means at the end we have to minus a minus 2 the whole square, means we have to do a minus 2 the whole square, then minus 2 and plus 2 will be what it means, it will be already. Just a minute. Just a minute. Come with the basic. Exactly what is the problem? Sir, why we have taken alpha plus 2 as a and then taken Alpha a plus 2, minus 2 the whole square? because we have to find the equation in terms of capital A and capital B. That's the reason I have taken this as A and B. Now at the end I can say A x minus 2 the whole square plus B x minus 2 plus C is equal to 0, whose roots are capital A and capital B. Capital A means alpha plus 2, capital B means beta plus 2. So now overall I can say a into x minus 2 the whole square plus b into x minus 2 plus c is equal to 0, whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2. Is it okay? Okay, sir. Yes, sir. Done, sir. Done. Means at last I can say, right, from this I can say, right, this what I'm getting is a x minus 2 the whole square b x minus 2 plus c is equal to 0, whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2. राइट, ये हो गया आपके पास. बट ध्यान से देखना आप, राइट, ये इज इट ओके टू एवरीवन? राइट डाउन यस इन चैट इफ ओके. Everyone please. Everyone means everyone, right? You're in class and sir is asking for this, so you have to write down either yes or no. If you are understanding, you have to write down yes. If not understanding, you have to write down no. And if I'm not getting response, so obviously you'll be out from the class. Yes, over done. Understanding this? Yes, sir. मेरे को रिस्पॉन्स लेकिन तेरा नहीं मिला यहाँ. मतलब एक हाँ एक सर, लिखने में एक एक को मैं पकड़ के बात करूं क्या? विनीत, Yes, sir. दोनों विनीत ने लिख दिया. यस. वत्सल, वत्सल,
Okay. Right? Why I'm asking, right? You have to understand, right? What the reason why I'm asking? See, now we can say कि a x minus 2 the whole square plus b x minus 2 plus c is equal to 0 whose roots are alpha plus 2. देखना, अगर यहाँ से मैं ध्यान दूँ ना, तो इट्स वेरी सिंपल एंड मैं डायरेक्ट आंसर पे पहुंचूंगा. कैसे? ध्यान से. See, अब मैंने अगर यहाँ पर ये जज कर लिया कि अल्फा प्लस 2 इज a एंड बीटा प्लस 2 इज b. अल्फा बीटा जो इक्वेशन था उसी की जगह पर मेरे x यहाँ पर रखे हुए हैं, राइट? अल्फा एंड बीटा की जगह पर ही हमारे पास x रखे हुए हैं, राइट? अब अल्फा बीटा की जगह पर ही हमारे पास x रखे हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू a अगर मैंने यहाँ पुट किया तो a, यही a जो है वो x बन जा रहा है मेरा, राइट? तो ओवरऑल व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस, राइट, अगर मैं ये पूरी चीजों को एक साथ मिलाऊं, देन व्हाट आई कैन से इज ax square plus bx plus c is equal to 0, right? Whose roots are alpha and beta. Alpha beta उसके roots हैं. Now find equation whose roots are alpha plus 2 beta plus 2. तो मेरे को सोचना क्या है कि ये इसे इसे मुझे कैपिटल A लेना है या कैपिटल B लेने हैं, राइट? एंड अल्फा जो है वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ a minus 2 the whole square b a minus 2 plus c is equal to 0, और यही जो कैपिटल A है इसी की जगह पर मुझे x रखने हैं. ध्यान दो, मैंने कई सारे कैलकुलेशन खत्म कर दिए, राइट? अब आपकी बारी, आप लोग आंसर लिखोगे, राइट? मैं बोल रहा हूँ फाइंड इक्वेशन whose roots are with the given condition, राइट? ऊपर जो गिवन था रूट्स आर अल्फा माइनस 2 and beta minus 2. Write down the answer, please. x के प्लेस पर क्या लिखने हैं, दैट यू हैव टू राइट डाउन ओनली. x के प्लेस पूरा मत लिखो, x के प्लेस पे क्या लिखने हैं केवल इतना लिख दो, काफी रहेगा. वेरी गुड. व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन प्लेस ऑफ x? Right. So in place of x only you have to put x plus 2. How many of you are getting this right? Please write down yes in chat. Right. Second question. Now find roots minus alpha minus beta. ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, but obviously what you have to write down in place of x to convert the equation whose roots will be minus alpha and minus beta. Write down.
Very good. Only minus alpha is equal to a, alpha is equal to minus a, means you are putting minus x in place of x. Right? Third, 1 by alpha, 1 by beta. One by alpha, 1 by beta. What you have to put in place of x, right? The equation will be a, x की जगह पर ये लिख दिया मैंने. This will be the equation, or you can write cx square plus bx plus a is equal to 0. वन लाइनर होंगे काम आपके लिए, ध्यान दो. वन लाइनर होंगे, अल्फा प्लस बीटा भी मुझे नहीं निकालना, अल्फा इनटू बीटा भी मुझे नहीं निकालना, राइट? फोर्थ, 2 अल्फा 2 बीटा. 2 अल्फा 2 बीटा. राइट? वेरी गुड, वेरी गुड. बट ये केसेस सिमेट्रिसिटी के लिए है, राइट? सिमेट्रिसिटी के लिए मींस व्हाट यू हैव टू पुट a x by 2 the whole square b x by 2 plus c is equal to 0, राइट? उदय x भी है, right? X by 2 the whole square, right? Fifth, alpha by 2 beta by 2, right? मतलब every time you have not to find sum of the roots and product of the root, directly you can find the values. अब इसके अच्छे क्वेश्चन पर आता हूँ, right? I guess concept सभी को clear है. Then we can go further. See, ax square plus bx plus c is equal to 0, whose roots are alpha and beta. Find quadratic equation whose roots are, first question, 1 by a alpha plus b and 1 by a beta plus b, right? A alpha plus b and a beta plus b. न्यू मेथड, हाँ न्यू मेथड से सॉल्व करो. मे बी द क्वेश्चन विल बी वेरी 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 सिंपल. थोड़ा सा ध्यान से देखो बस. और आसान हो सकता है मानस, और आसान हो सकता है, थोड़ा और सोचो.
सी व्हाट टू डू ऑन दिस, राइट। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इस इक्वेशन में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा अपॉन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, एंड इसमें बीटा से मल्टीप्लाई किया ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा। वी नो दैट alpha is the root of this equation, means a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, means a alpha square plus b alpha is nothing but ये दोनों आ गए। अब ये जो है इसे मुझे कैपिटल ए लेना है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस सी इंटू ए हो गई, राइट। ऑब्वियसली ए माइनस सी ए का होल स्क्वायर, बी इंटू माइनस सी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की जगह एक्स रख देता हूँ, तो सी एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स रख देता हूँ, -1 बी सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी कॉमन आउट, समथिंग लाइक दिस। ये एक सी यहाँ पर आएगा, सी स्क्वायर का, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट यू आर डूइंग, राइट, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। यस अमन, ये वाला सॉल्यूशन फिर से दिखा सकते हैं एक बार? एकदम बेटा। ध्यान दीजिए, मैंने पहले उसे उस रेंज पे लाया जहां मेरे लिए वर्किंग आसान हो। 1 बाई ए अल्फा प्लस बी, 1 बाई ए बीटा प्लस बीटा, एंड अल्फा एंड बीटा आर द इक्वेशन। का मतलब ही ये होता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, राइट। तो मैंने अगर यहाँ पर अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आई एम गेटिंग दिस, अल्फा अपॉन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी, बीटा अपॉन ए बीटा स्क्वायर प्लस बी। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा की वैल्यू होगी माइनस सी, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा की वैल्यू होगी माइनस सी, राइट। मेरे अब जो मुझे लाना था वो इक्वेशन चेंज होके हो गया माइनस अल्फा बाई सी माइनस बीटा बाई सी, राइट। ये दोनों तो मैंने इसे कैपिटल ए ले लिया, जो वर्किंग हमारी रहती थी। अल्फा की जो वैल्यूज आई फिर से मैं इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक गिवन है उस पर मैं रख दिया, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। जस्ट थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखा तो जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है वो लिख दिया। इज इट ओके? यस सर। ओके एवरीवन, ये आप सबके लिए है, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट। टेक योर टाइम, 3 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया। ध्यान से देखना ना, इसमें काफी अच्छा उपाय कर सकते हो आप।
Done. डन। मैं करूं? ध्यान दो, मैं करता हूं। देखो, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। अब इसमें मैं ये रखता हूं, I'm multiplying this by first one by alpha, so I'm getting alpha square by alpha beta. Second one by beta, beta square by alpha beta. I know that alpha square is this only, but alpha into beta, we know the formula C by A, and again leave this beta square, and alpha into beta is C by A, right? Means obviously A alpha square by C, that we have to take as capital A, right? Or alpha is equal to C by A into A under root with plus minus sign. And in the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, put the value of, in place of alpha, there is x, so put the value a c by a into a plus b plus minus under root c by a into a plus c is equal to 0, right? In place of a, we have to put x, right? Transfer this, squaring both sides. 1c, we can cancel. C x square plus 2x plus 1 is equal to b square x. You have to convert these equations in such a form where you will feel comfortable
डन एवरीवन? बात समझ में आई? कैसे जाने हैं क्वेश्चन के लिए? यस सर। राइट। बट इस चीज का, चलो एक और करवाता हूं, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं बट पे आता हूं क्या होगा। राइट, वन मोर। 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. Roots are alpha and beta. Right? Find equation whose roots are 1 minus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta. This is the toughest question, right, in this segment. So obviously be careful and कितना अच्छा आप apply कर सकते हो, that you have to see. Your time starts Kevin, very good. Aditya, very good. Yes, Dhruv. ये रक्षित क्या लिखा तूने? जो तूने 1/x का लिख दिया, ये तो पूरा इक्वेशन ही चेंज है। सर चेक करता हूँ। आखिरी में ये आ रहा है तब तो मजा आ जाएगा।
only you have to write what you will replace with this x. इस x को कौन से x से replace करना है? If you are writing that ना, that's sufficient for me. Yes, you can write also in terms of a or x. Very good, Sikta. Vaishnavi, very good. अमन, अभी तक आंसर नहीं आया. अमोघ, अंश, अंशुमन, अनुष्का, अस्का, अश्विन, very good, Siddhi. Look into this. मैं करता हूँ यार, होना चाहिए था, इतनी बड़ी बात नहीं है, बस बेसिक पे ही आई एम सेइंग like this I have to take as capital A. So use componendo dividendo or dividendo componendo. A 1 minus A upon 1 plus A is equal to alpha. And this alpha is the older x only, and you have to put 2 1 minus x upon 1 plus x the whole square minus 3 1 minus x upon 1 plus x plus 5 is equal to 0. So this equation what you are getting, अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो. Plus 5 times 1 plus x the whole square is equal to 0. राइट आप अगर चाहो तो इसे ओपन कर सकते हो. यू कैन से दिस कि लाइक व्हाट इज द नंबर एंड हाउ नंबर इज गोइंग. इज इट ओके? ओके एवरीवन? बट ये ख्याल रखना जितने भी केसेस अभी तक मैंने आपको दिए वो सिमेट्रिक केस थे. इफ आई एम सेइंग ax square plus bx plus c is equal to 0, roots are alpha and beta, find equation with this and alpha beta. इससे मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोनों जो यहाँ गिवन है मेरे पास दोनों सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है. दोनों सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है तो यू हैव टू गो विद द बेसिक ओनली. यू हैव टू फाइंड सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट. राइट, तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई का होल स्क्वायर एंड सी बाई ए, ये दोनों हमारे रूट्स हैं. एक बार सम लेना है, एक बार प्रोडक्ट लेना है. इज इट ओके? राइट ना. सो एक क्वेश्चन और इसी पर रूट्स पर मैं दे रहा हूं. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x minus a x minus b is equals to k, prove that a and b are the roots of x minus c x minus d plus k is equal to 0. थोड़ा इसे सोच के आप बताएं. Conceptually we can go for this.
Done. Piyush, done. Alpha and beta are the roots. इस अल्फा बीटा को मैं थोड़ा सा चेंज करके कर देता हूं सी एंड डी, दोनों में एक जैसा आ जाएगा. सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू के. प्रूव दैट a and b आर द रूट्स ऑफ x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के इज इक्वल टू 0. डू इट. Yes, anyone? If you have done, write down yes in chat. Kevin, could you explain this? Yes. हाँ तो मैंने वो के की वैल्यू उधर लेके उसको मैं माइनस के से डाल दिया, तो अगर उधर सपोज मैं सी डालूंगा तो उसका रूट है तो राइट हैंड साइड में 0 होगा और उधर भी 0 हो जाएगा. वैसे अगर मैं ये डालूंगा तो भी 0 हो जाएगा, तो उधर से Not bad. Not bad. Aman. यस सर, के को इधर ले लिया तो एक वो फिर बन गया सर इक्वेशन. Okay. Asmi. हाँ, मैंने भी सिमिलर अप्रोच ही ट्राई किया और फिर ए और बी देखा तो वो सैटिस्फाई कर रहे थे, 0 दे रहा था. एंड रूट जो सी और डी थे तो फिर वो ही सब्स्टिट्यूट करके प्रूव हो गया. यस. Piyush. Rakshit. सर मैंने भी वही किया, के को इधर ले लिया, फिर सी प्लस डी और सी इंटू डी का वैल्यूज निकाल के सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करके उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 आया. बहुत ध्यान से देखना सभी लोग. हाँ, दैट्स वेरी वेरी गुड वन. x minus a x minus b minus k is equal to let x minus alpha into x minus beta. क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो आई कैन से x माइनस ए, मैं इसको ट्रांसफर करने के बाद इसे लिख दिया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, राइट. बट अल्फा बीटा इन दिस केस, अल्फा बीटा इज सी एंड डी, राइट. तो अल्फा बीटा की जगह सी एंड डी है, तो दिस इज x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी. दिस इज x माइनस ए x minus b minus k, right? And from this what I can do, ये k को मैं राइट में ट्रांसफर किया, k को राइट में ट्रांसफर किया, तो what I'm getting x minus a x minus b is equal to x minus c x minus d plus k. means क्या हुआ, x minus c x minus d plus k is equal to x minus a x minus b. What is the meaning of this, right? कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो फैक्टर्स मैं कर पा रहा हूं, वन इज x माइनस ए एंड सेकंड इज x माइनस बी, राइट. कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आई एम सेइंग कि दिस इज द कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू आर गेटिंग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एज अ फैक्टर.
right? X minus A, X minus B is a factor. So we know that for any factor of this, right? For this factor, we know that this must be the root of the equation for this equation. So we are getting A and B are the roots of this quantity. Is it okay, everyone? Write down yes if it's okay. Okay, right. So कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, प्लीज राइट इट डाउन. ax square plus bx plus c is equal to 0. Roots are alpha and beta. Find equation whose roots are first alpha square comma beta square, second alpha cube comma beta cube, third alpha by beta, beta by alpha, fourth alpha square minus beta square into alpha cube minus beta cube, and alpha square beta cube plus beta square alpha cube. Fifth, 1 by a alpha plus b, 1 by a beta plus b. Sixth, alpha plus beta the whole square, alpha minus beta the whole square. Seventh, alpha plus beta and alpha beta by 2. Eighth, one by alpha square, 1 by beta square. Okay. Carefully. नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कंसेप्ट विल डू, राइट. यहाँ तक सबको कंप्लीट होने चाहिए. कुछ क्वेश्चन मैं और शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ.